ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಸನ್ನಿಧಿ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮತಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೆ, ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಶ್ರೀ ಕೋಟೇಶ್ವರ್ ಶರ್ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಾನು ಶರಣ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. बहुत धन्यवाद आपके पधारने का, आज यहाँ आने का, उनसे हेगड़े जी से मिलने का और वो जो काम कर रहे हैं उसको समझ श्रृंगेरी जाकर उनके शंकराचार्य जी से मिलो और कल उडुपी में पेजावर स्वामी जी से मिला। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल ने सब सरकारों को ये कहा कि वो हिंदू मंदिरों पर अपना कब्जा छोड़ दें और हिंदू मंदिरों को वापस हिंदू समाज को सौंप दें। हमने ये भी कहा कि हिंदू मंदिरों में जो पैसा आता है वो हिंदू कामों के लिए खर्च होना चाहिए। बाद में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फिर इस बात को दोहराया है। तो कैसा कानून बने, क्या उसके प्रावधान होंगे, किन लोगों को वापस कैसे सौंपा जाए, इसकी सब लोग मिलकर खोजबीन कर रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को ये कहा है कि ये विषय कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक अ लॉ ऑन दिस। और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एक केंद्रीय कानून बनाए और हिंदू मंदिर को वापस हिंदुओं को सौंप दे। जैसे वो मस्जिद नहीं चलाती, जैसे वो गिरजाघर नहीं चलाती, जैसे सरकार गुरुद्वारे नहीं चलाती, वैसे सरकार का ये कोई काम नहीं है कि वो मंदिरों को चलाए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए एक बड़ा जन जागरण अभियान शुरू करेगी और
हम सरकार को इस बात के लिए जरूर मजबूर करेंगे कि इस तरह का कानून आए और हमारे मंदिर हमारे समाज को वापस मिले। जो मुझे दूसरी बात आपसे कहनी है वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद देश में और विशेष तौर पर कर्नाटक के अनुसूचित समाज में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में तेजी से हो रहे कन्वर्शन से बहुत चिंतित है। हमारी समझ यह है कि यह जो कन्वर्शन हो रहे हैं ये कोई अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। दे आर नॉट अ चेंज ऑफ कॉन्शियंस। वो लालच से हो रहे, वो धोखे से भी हो रहे, वो भय से भी हो रही और वो लव जिहाद से हो रही। हमने उन जिलों की पहचान की है जिसमें ये कन्वर्शन ज्यादा तेज हो रहा है और हम लोग वहां पर इस कन्वर्शन को रोकने के लिए भी और जो लोग उधर चले गए उनको वापस लाने के लिए एक बड़ा अभियान करेंगे। इसके लिए हमने कर्नाटक के सब संतों से भी मिलना शुरू किया है। हमको समर्थन मिल रहा है। दिवाली के बाद में हम मुख्यमंत्री जी को भेंट करके उनको याद कराएंगे कि भाजपा ने कर्नाटक में कन्वर्शन और लव जिहाद को रोकने के लिए एक इफेक्टिव कानून बनाने को कमिट किया हुआ है और आने वाले दिनों में हम इस बात का अभियान तेज करेंगे कि कर्नाटक में भी ऐसा ही इफेक्टिव कानून बने जैसा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में है। और इस विषय पर भी मैं इस दौरे में और अन्यथा भी हम सब लोग सब संतों से और समाज से बात कर रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में कहें। बांग्लादेश में जो हुआ है वो हम सबके लिए चिंता की बात है। 150 पूजा पंडाल नष्ट किए। कितने लोगों की जाने गई? 11 लोगों की दुकानें लूटी गई, मकान जलाए गए। ये घटना चिंता पैदा करती है। बांग्लादेश के संविधान में ये लिखा है कि इस्लाम वहां का राजधर्म है, पर यह भी लिखा है कि वहां हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाइयों को बराबर के अधिकार और सुरक्षा मिले। बांग्लादेश की सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल हुई। हमने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया है और आतंकवादियों को हमने कहा है कि ये तरीके काम नहीं आएंगे। इसका गुस्सा होगा तो नुकसान सबको होगा। और अपने भारत सरकार से भी कहा है कि वो पाकिस्तान की सरकार पर एक नैतिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर लाए। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार ने वायदा किया है, वहां की प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो दोनों काम करेंगे, दोषियों को दंड देना और पीड़ितों को मुआवजा देना। इस बात के लिए हम बाकी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आग्रह करेंगे कि वो बांग्लादेश पर इन दोनों चीजों को करने का दबाव बनाए। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि जब से 370 समाप्त हुई थी, कश्मीर नॉर्मेंसी की ओर जा रहा था। ब्राह्मण लौट रहे थे, अभी गेटेड कॉम्प्लेक्स में थे, वहां सुरक्षित थे, पर बीते 20 दिनों में जो 3 हमले हुए और 11 सिविलियंस मारे गए थे, वो एक चिंता की बात है। वहां की हिंदू आबादी
सिख आबादी, माइग्रेंट लेबर और सरकार में निष्ठा से काम कर रहे मुसलमान भी, इन सब में भय हुआ है। वापस आने की बात हुई। अब तक की सारी प्रगति को ये बात कमजोर करती। मुझे संतोष है कि गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और पुष्ट करेगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जो लोग कश्मीर छोड़कर आ गए थे वो वहां वापस जाकर के आराम से बच सकेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवादियों के लिए कहना चाहता हूं कि वो इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं उससे भारत की विल को, संकल्प को, एकात्मता को किसी भी तरह से कमजोर नहीं कर सकेंगे। हम मिलकर रहेंगे और कश्मीर की एकात्मता और अखंडता के लिए जो प्रयत्न रखा है उसको सफलता तक पहुंचाएंगे। मुझे ये 4 बातें कहनी थी। आपको मुझे पूछना हो तो अब आप पूछें। आज धर्मस्थल को विजिट किया है, सो इसके धर्मस्थल के बारे में ये मेरे लिए एक लिबरल एजुकेशन थी। एक संत अपनी सामाजिक चेतना से, उनको 68 में वो यहाँ के प्रमुख हुए थे, 54 इयर्स में कितना सारा काम कर सकते हैं, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, कितने तालाबों को रेस्टोर कर सकते हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिलाओं को डिग्निटी और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, खेती को आगे बढ़ाने के लिए कैसा कर सकते हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए और हिंदू भाव के जागरण के लिए, संस्कार के जागरण के लिए। तो मुझे लगा कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। इन सब कामों के लिए मैंने उनको प्रणाम किया है। विश्व हिंदू परिषद भी अपने सेवा के कामों में उनके कुछ कामों का अध्ययन करके सीखेगी, और इन दोनों विषयों पर, एक तो मंदिरों को मुक्ति मिलना और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनना, इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की है और उनका मार्गदर्शन किया है। थैंक यू। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಜುಕಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಸುವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡ ಸುಜುಕಿ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾವೊಂದರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಿಕ್ಸರ್ SF, ಸ್ಕೂಟರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 125 ಬೇಸ್, ಡ್ರಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ 125 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ 125 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಬರ್ಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 125 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಡಿಷನ್. ಸುಜುಕಿ ಪೈಕೇಟ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಲಾಯ್ಲಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9900494153 ಅಥವಾ 9535210366 ಅಥವಾ 8105010100.